بیٹا پیدا ہوا ہے اور تھا میرے یہاں بیٹی پیدا ہوتی. بیٹی؟ سچ بتاؤ مجھ کو، میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ اور تمہارے منہ سے سچ نکل گیا صاحب جان؟ بتاؤ مجھ کو. میری زبان نے تو مروا ہی دیا آج. اگر جانداد سرکار کو پتہ چل گیا کتنا اہم راز میری زبان سے پھسل گیا، وہ تو مجھے جان سے ہی مار دے گا. آپ کو پتا ہے عاشق علی اور اس کی بیٹی کہاں ہے؟ خدا کے لیے بادشاہ اسے ڈھونڈنے کی بھی کوشش نہ کرنا. اگر وہ یہاں آ گیا تو خاندان میں ہماری ملازمہ نے لاجو کو نہلا دھلا کر تیار کرا تھا. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ طے یہ پایا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی لاجو سے بچہ لے کر اسے واپس بھیج دیا جائے گا. پھر قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ 4 مہینے بعد پتہ یہ چلا کہ 3 مہینے سے صاحب جان بھی امید سے ہے. دائیوں نے بڑی کوشش کی کہ غلام ماں کی کوکھ میں ہی مر جائے، مگر قدرت کو جیسے ضد آ گئی تھی. بالآخر غلام پیدا ہوا. اگر کسی کو بتایا کہ یہ کس کی اولاد ہے تو میں اس بچے کا گلا گھونٹ دوں گی. 1 مہینے بعد تم پیدا ہوئے، تم بادشاہ بن گئے اور وہ غلام. کتنا ظلم دیکھا ہے سندر حویلی کی در و دیوار نے. کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. اگر میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو شاید آج غلام میری جگہ ہوتا اور وہ تمام بادشاہت جو میں نے. اچھا پتہ کرو میری بیٹی کہاں ہے. تم پتہ کرا سکتے ہو؟ تم تو منسٹر ہو گئے ہو نا. عاشق علی کے نام سے پتہ کراؤ. وہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا لٹریچر میں، کسی یونیورسٹی کسی کالج میں پڑھا رہا ہوگا. میرے یہاں بیٹی ہوئی تھی میرے یہاں. وعدہ کرو تم آفس جا کر پہلا کام یہی کرو گے، پتہ کراؤ گے تم. تمہارے بابا نے مجھ سے کیوں کہا کہ میں تمہیں سندر گڑھ لے جاؤں؟ کیوں؟ یہ بات میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ ایسا کون سا راز ہے سندر گڑھ میں جو ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا اور نہ بابا نے مجھے بتایا. خود جی کو ساری کی ساری بات کا علم ہے. انہوں نے تو میرے بابا کی لاش تک دفن نہیں ہونے دی ادھر. مجھے لگتا ہے وہ میرے بابا سے بہت نفرت کرتے ہیں. لیکن کل نہیں بدلے گی. کل میں جہانداد سے 22 سال بعد پھر سوال کروں گی. وہ تمام سوال جو میں نے 22 سال پہلے کیے تھے. مجھے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، چاہے کوئی. منہ سے تو بس بات نکل گئی تھی، لیکن تمہاری پھوپھی اماں نے تو پکڑ لی کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جبکہ ایسا نہیں ہے. کی نہ میں بھی ہاں چھپی ہے. ایک ذرا سا بھی عقل مند انسان یہ بات کا اندازہ مجھے اپنے بابا کے عذاب سے بچاؤ. اگر تمہارے بابا کو پتہ چل گیا کہ میں نے بتایا ہے تو وہ میرا وہ حشر کریں گے. اپنی ماں کی عزت کروانا میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، میں کر لوں گا. تمہارے بابا قیامت لے آئیں گے. یار تو میں ٹال دوں گا قیامت. یہ فرد تمہارے پاس کام لے کر آیا نا تو اسے فوقیت دینی ہے. نہیں بابا، میں حلف اٹھا چکا ہوں کہ میں اپنے کسی بھی رشتہ دار کو ویسے وہ آپ کو پتا نا ڈاکٹر ایک جنازہ لے کر آیا تھا. جنازہ؟ کس کا جنازہ؟ پتا نہیں کوئی مریض تھا، اس کا جنازہ لایا. کیا نام تھا اس شخص کا جس کا جنازہ آیا تھا؟ جہانداد سرکار نے خورشید بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر انہیں مارنے کی کوشش کی،
मगर गुलाम ने सामने आकर वो पुराना निकाहनामा दिखा दिया जिसने साहिब जान की औकात मिट्टी में मिला दी। हवेली के सहन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। जहांदाद सरकार के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो उन्होंने 22 साल से अपने अंदर दफन किया था। साहिब जान जो दीवार के साथ लगकर खड़ी थीं, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो कागज कोई आम दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उस हवेली की सारी जायदाद और इज्जत का फैसला था। गुलाम ने गरजते हुए लहजे में कहा, सरकार, आपने समझा था कि खुर्शीद बीवी सिर्फ एक कैदी हैं, मगर आप ये भूल गए कि ये इस हवेली की असली मालिक और आपकी मनकोहा बीवी हैं। हवेली की फसील पर भी एक अजीब सुन्नाटा छा गया था। बादशाह, जो अब तक वजीर बनने के नशे में था, उसने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप जहांदाद की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। जहांदाद सरकार की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया था। साहिब जान ने चिल्लाकर कहा कि ये गुलाम झूठ बोल रहा है, ये लड़का हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। मगर गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा जान, सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। प्रोमो में आपने देखा था कि साहिब जान के मुंह से सच निकल चुका है, और वो सच यही था कि उन्होंने 22 साल पहले खुर्शीद बीवी के हक पर डाका डाला था। सुंदरी जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने अपने बाप आशिक अली को याद किया, जिसने इसी सच के लिए अपनी जान दे दी थी। गुलाम ने सुंदरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। जहांदाद सरकार ने घबरा कर कहा, बता दो मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? गुलाम ने खुर्शीद बीवी की तरफ इशारा किया और कहा कि जिसे आपने 22 साल तक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधे रखा, इसी की गोद में आपकी अमानत पाली है। खुर्शीद बीवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सुंदरी को अपने गले से लगा लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हवेली के कमसन मुलाजिम भी रोने लगे। अब फैसला बादशाह को करना था। उसने अपनी वजारत की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मेरे बाप के गुनाहों के ऊपर खड़ा हो। साहिब जान ने बादशाह को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि अम्मा, आपकी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली है। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने अपनी बंदूक की नली अपने ही तालू पर रख ली। गुलाम ने झट से बंदूक छीन ली और कहा कि सरकार, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, अभी तो आपने अपने गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना है। रात के इस पहर में हवेली के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब से हवेली की मालकिन खुर्शीद बीवी हैं। साहिब जान को उनके पुराने जेवरात और रेशम के कपड़े उतारकर सादा कपड़े पहना दिए गए। उन्हें उसी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर किया गया जहां वो मजलूम लड़कियों पर जुल्म करती थीं। जहांदाद सरकार को हवेली के दरमियान में एक खंभे से बांध रखा गया ताकि हर आने वाला शख्स उनके मुंह पर थूक सके। सिंदरी ने जब देखा कि उसके दुश्मनों का ये हाल हुआ है, तो उसने गुलाम से कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहती है। मगर गुलाम ने कहा कि सिंदरी, इंसानियत की मदद करना मेरी फितरत में है, मगर जालिम को सजा देना कुदरत का कानून है। बादशाह ने हवेली से निकलते हुए सिंदरी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जहां कोई सरकार नहीं होगा। खुर्शीद बीवी ने अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि 22 साल बाद उनकी बेगुनाही साबित हो गई। इस किस्त का इख्तिताम ऐसा होगा कि हर देखने वाले की रूह कांप जाएगी। गुलाम ने जहांदाद सरकार ने खुर्शीद बीवी के गले में हाथ डालकर उन्हें मारने की कोशिश की, मगर गुलाम ने सामने आकर वो पुराना निकाहनामा दिखा दिया जिसने साहिब जान की औकात मिट्टी में मिला दी। हवेली के सहन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। जहांदाद सरकार के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो उन्होंने 22 साल से अपने अंदर दफन किया था। साहिब जान जो दीवार के साथ लगकर खड़ी थीं, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो कागज कोई आम दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उस हवेली की सारी जायदाद और इज्जत का फैसला था। गुलाम ने गरजते हुए लहजे में कहा, सरकार, आपने समझा था कि खुर्शीद बीवी सिर्फ एक कैदी हैं, मगर आप ये भूल गए कि ये इस हवेली की असली मालिक और आपकी मनकोहा बीवी हैं। हवेली की फसील पर भी एक अजीब सुन्नाटा छा गया था। बादशाह जो अब तक वजीर बनने के नशे में था,
उसने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप जहांदाद की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। जहांदाद सरकार की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया था। साहिब जान ने चिल्लाकर कहा कि ये गुलाम झूठ बोल रहा है, ये लड़का हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। मगर गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा जान, सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। प्रोमो में आपने देखा था कि साहिब जान के मुंह से सच निकल चुका है, और वो सच यही था कि उन्होंने 22 साल पहले खुर्शीद बीवी के हक पर डाका डाला था। सुंदरी जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने अपने बाप आशिक अली को याद किया, जिसने इसी सच के लिए अपनी जान दे दी थी। गुलाम ने सुंदरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। जहांदाद सरकार ने घबरा कर कहा, बता दो मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? गुलाम ने खुर्शीद बीवी की तरफ इशारा किया और कहा कि जिसे आपने 22 साल तक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधे रखा, इसी की गोद में आपकी अमानत पाली है। खुर्शीद बीवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सुंदरी को अपने गले से लगा लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हवेली के कमसन मुलाजिम भी रोने लगे। अब फैसला बादशाह को करना था। उसने अपनी वजारत की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मेरे बाप के गुनाहों के ऊपर खड़ा हो। साहिब जान ने बादशाह को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि अम्मा, आपकी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली है। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने अपनी बंदूक की नली अपने ही तालू पर रख ली। गुलाम ने झट से बंदूक छीन ली और कहा कि सरकार, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, अभी तो आपने अपने गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना है। रात के इस पहर में हवेली के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब से हवेली की मालकिन खुर्शीद बीवी हैं। साहिब जान को उनके पुराने जेवरात और रेशम के कपड़े उतारकर सादा कपड़े पहना दिए गए। उन्हें उसी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर किया गया जहां वो मजलूम लड़कियों पर जुल्म करती थीं। जहांदाद सरकार को हवेली के दरमियान में एक खंभे से बांध रखा गया ताकि हर आने वाला शख्स उनके मुंह पर थूक सके। सिंदरी ने जब देखा कि उसके दुश्मनों का ये हाल हुआ है, तो उसने गुलाम से कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहती है। मगर गुलाम ने कहा कि सिंदरी, इंसानियत की मदद करना मेरी फितरत में है, मगर जालिम को सजा देना कुदरत का कानून है। बादशाह ने हवेली से निकलते हुए सिंदरी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जहां कोई सरकार नहीं होगा। खुर्शीद बीवी ने अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि 22 साल बाद उनकी बेगुनाही साबित हो गई। इस किस्त का इख्तिताम ऐसा होगा कि हर देखने वाले की रूह कांप जाएगी। गुलाम ने जहांदाद सरकार ने खुर्शीद बीवी के गले में हाथ डालकर उन्हें मारने की कोशिश की, मगर गुलाम ने सामने आकर वो पुराना निकाहनामा दिखा दिया जिसने साहिब जान की औकात मिट्टी में मिला दी। हवेली के सहन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। जहांदाद सरकार के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो उन्होंने 22 साल से अपने अंदर दफन किया था। साहिब जान जो दीवार के साथ लगकर खड़ी थीं, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो कागज कोई आम दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उस हवेली की सारी जायदाद और इज्जत का फैसला था। गुलाम ने गरजते हुए लहजे में कहा, सरकार, आपने समझा था कि खुर्शीद बीवी सिर्फ एक कैदी हैं, मगर आप ये भूल गए कि ये इस हवेली की असली मालिक और आपकी मनकोहा बीवी हैं। हवेली की फसील पर भी एक अजीब सुन्नाटा छा गया था। बादशाह जो अब तक वजीर बनने के नशे में था, उसने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप जहांदाद की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। जहांदाद सरकार की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया था। साहिब जान ने चिल्लाकर कहा कि ये गुलाम झूठ बोल रहा है, ये लड़का हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। मगर गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा जान, सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। प्रोमो में आपने देखा था कि साहिब जान के मुंह से सच निकल चुका है, और वो सच यही था कि उन्होंने 22 साल पहले खुर्शीद बीवी के हक पर डाका डाला था। सुंदरी जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने अपने बाप आशिक अली को याद किया, जिसने इसी सच के लिए अपनी जान दे दी थी। गुलाम ने सुंदरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है।
जहांदाद सरकार ने घबरा कर कहा, बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। गुलाम ने खुर्शीद बीवी की तरफ इशारा किया और कहा कि जिसे आपने 22 साल तक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधे रखा, इसी की गोद में आपकी अमानत पाली है। खुर्शीद बीवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सुंदरी को अपने गले से लगा लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हवेली के कमसन मुलाजिम भी रोने लगे। अब फैसला बादशाह को करना था। उसने अपनी वजारत की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मेरे बाप के गुनाहों के ऊपर खड़ा हो। साहिब जान ने बादशाह को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि अम्मा, आपकी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली है। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने अपनी बंदूक की नली अपने ही तालू पर रख ली। गुलाम ने झट से बंदूक छीन ली और कहा कि सरकार, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, अभी तो आपने अपने गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना है। रात के इस पहर में हवेली के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब से हवेली की मालकिन खुर्शीद बीवी हैं। साहिब जान को उनके पुराने जेवरात और रेशम के कपड़े उतारकर सादा कपड़े पहना दिए गए। उन्हें उसी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर किया गया जहां वो मजलूम लड़कियों पर जुल्म करती थीं। जहांदाद सरकार को हवेली के दरमियान में एक खंभे से बांध रखा गया ताकि हर आने वाला शख्स उनके मुंह पर थूक सके। सिंदरी ने जब देखा कि उसके दुश्मनों का ये हाल हुआ है, तो उसने गुलाम से कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहती है, मगर गुलाम ने कहा कि सिंदरी, इंसानियत की मदद करना मेरी फितरत में है, मगर जालिम को सजा देना कुदरत का कानून है। बादशाह ने हवेली से निकलते हुए सिंदरी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जहां कोई सरकार नहीं होगा। खुर्शीद बीवी ने अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि 22 साल बाद उनकी बेगुनाही साबित हो गई। इस किस्त का इख्तिताम ऐसा होगा कि हर देखने वाले की रूह कांप जाएगी। गुलाम ने जहांदाद सरकार ने खुर्शीद बीवी के गले में हाथ डालकर उन्हें मारने की कोशिश की, मगर गुलाम ने सामने आकर वो पुराना निकाहनामा दिखा दिया जिसने साहिब जान की औकात मिट्टी में मिला दी। हवेली के सहन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। जहांदाद सरकार के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो उन्होंने 22 साल से अपने अंदर दफन किया था। साहिब जान जो दीवार के साथ लग कर खड़ी थीं, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो कागज कोई आम दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उस हवेली की सारी जायदाद और इज्जत का फैसला था। गुलाम ने गरजते हुए लहजे में कहा, सरकार, आपने समझा था कि खुर्शीद बीवी सिर्फ एक कैदी हैं, मगर आप ये भूल गए कि ये इस हवेली की असली मालिक और आपकी मनकोहा बीवी हैं। हवेली की फसील पर भी एक अजीब सुन्नाटा छा गया था। बादशाह, जो अब तक वजीर बनने के नशे में था, उसने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप जहांदाद की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। जहांदाद सरकार की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया था। साहिब जान ने चिल्लाकर कहा कि ये गुलाम झूठ बोल रहा है, ये लड़का हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। मगर गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा जान, सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। प्रोमो में आपने देखा था कि साहिब जान के मुंह से सच निकल चुका है, और वो सच यही था कि उन्होंने 22 साल पहले खुर्शीद बीवी के हक पर डाका डाला था। सुंदरी जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने अपने बाप आशिक अली को याद किया, जिसने इसी सच के लिए अपनी जान दे दी थी। गुलाम ने सुंदरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। जहांदाद सरकार ने घबरा कर कहा, बता दो मुझे मेरी बेटी कहाँ है। गुलाम ने खुर्शीद बीवी की तरफ इशारा किया और कहा कि जिसे आपने 22 साल तक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधे रखा, इसी की गोद में आपकी अमानत पाली है। खुर्शीद बीवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सुंदरी को अपने गले से लगा लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हवेली के कमसन मुलाजिम भी रोने लगे। अब फैसला बादशाह को करना था। उसने अपनी वजारत की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मेरे बाप के गुनाहों के ऊपर खड़ा हो। साहिब जान ने बादशाह को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि अम्मा, आपकी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली है,
जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ हो गया है तो उन्होंने अपनी बंदूक की नली अपने ही तालू पर रख ली। गुलाम ने झट से बंदूक छीन ली और कहा कि सरकार, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, अभी तो आपने अपने गुनाहों का कफ्फारा इसी दुनिया में अदा करना है। रात के इस पहर में हवेली के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब से हवेली की मालकिन खुर्शीद बीवी हैं। साहिब जान को उनके पुराने जेवरात और रेशम के कपड़े उतारकर सादा कपड़े पहना दिए गए। उन्हें उसी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर किया गया जहां वो मजलूम लड़कियों पर जुल्म करती थीं। जहांदाद सरकार को हवेली के दरमियान में एक खंभे से बांध रखा गया ताकि हर आने वाला शख्स उनके मुंह पर थूक सके। सिंदरी ने जब देखा कि उसके दुश्मनों का ये हाल हुआ है तो उसने गुलाम से कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहती है, मगर गुलाम ने कहा कि सिंदरी, इंसानियत की मदद करना मेरी फितरत में है, मगर जालिम को सजा देना कुदरत का कानून है। बादशाह ने हवेली से निकलते हुए सिंदरी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जहां कोई सरकार नहीं होगा। खुर्शीद बीवी ने अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि 22 साल बाद उनकी बेगुनाही साबित हो गई। इस किस्त का इख्तिताम ऐसा होगा कि हर देखने वाले की रूह कांप जाएगी। गुलाम ने जहांदाद सरकार ने खुर्शीद बीवी के गले में हाथ डालकर उन्हें मारने की कोशिश की, मगर गुलाम ने सामने आकर वो पुराना निकाहनामा दिखा दिया जिसने साहिब जान की औकात मिट्टी में मिला दी। हवेली के सहन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। जहांदाद सरकार के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो उन्होंने 22 साल से अपने अंदर दफन किया था। साहिब जान जो दीवार के साथ लग कर खड़ी थीं, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो कागज कोई आम दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उस हवेली की सारी जायदाद और इज्जत का फैसला था। गुलाम ने गरजते हुए लहजे में कहा, सरकार, आपने समझा था कि खुर्शीद बीवी सिर्फ एक कैदी हैं, मगर आप ये भूल गए कि ये इस हवेली की असली मालिक और आपकी मनकोहा बीवी हैं। हवेली की फसील पर भी एक अजीब सुन्नाटा छा गया था। बादशाह, जो अब तक वजीर बनने के नशे में था, उसने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप जहांदाद की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। जहांदाद सरकार की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया था। साहिब जान ने चिल्लाकर कहा कि ये गुलाम झूठ बोल रहा है, ये लड़का हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। मगर गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा जान, सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। प्रोमो में आपने देखा था कि साहिब जान के मुंह से सच निकल चुका है, और वो सच यही था कि उन्होंने 22 साल पहले खुर्शीद बीवी के हक पर डाका डाला था। सुंदरी जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने अपने बाप आशिक अली को याद किया, जिसने इसी सच के लिए अपनी जान दे दी थी। गुलाम ने सुंदरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। जहांदाद सरकार ने घबरा कर कहा, बता दो मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? गुलाम ने खुर्शीद बीवी की तरफ इशारा किया और कहा कि जिसे आपने 22 साल तक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधे रखा, इसी की गोद में आपकी अमानत पाली है। खुर्शीद बीवी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सुंदरी को अपने गले से लगा लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हवेली के कमसन मुलाजिम भी रोने लगे। अब फैसला बादशाह को करना था। उसने अपनी वजारत की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मेरे बाप के गुनाहों के ऊपर खड़ा हो। साहिब जान ने बादशाह को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि अम्मा, आपकी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली है। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ हो गया है तो उन्होंने अपनी बंदूक की नली अपने ही तालू पर रख ली। गुलाम ने झट से बंदूक छीन ली और कहा कि सरकार, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, अभी तो आपने अपने गुनाहों का कफ्फारा इसी दुनिया में अदा करना है। रात के इस पहर में हवेली के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब से हवेली की मालकिन खुर्शीद बीवी हैं। साहिब जान को उनके पुराने जेवरात और रेशम के कपड़े उतारकर सादा कपड़े पहना दिए गए। उन्हें उसी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर किया गया जहां वो मजलूम लड़कियों पर जुल्म करती थीं। जहांदाद सरकार को हवेली के दरमियान में एक खंभे से बांध रखा गया ताकि हर आने वाला शख्स उनके मुंह पर थूक सके।
सिंदरी ने जब देखा कि उसके दुश्मनों का ये हाल हुआ है तो उसने गुलाम से कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहती है, मगर गुलाम ने कहा कि सिंदरी, इंसानियत की मदद करना मेरी फितरत में है, मगर जालिम को सजा देना कुदरत का कानून है। बादशाह ने हवेली से निकलते हुए सिंदरी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जहां कोई सरकार नहीं होगा। खुर्शीद बीवी ने अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि 22 साल बाद उनकी बेगुनाही साबित हो गई। इस किस्त का इख्तिताम ऐसा होगा कि हर देखने वाले की रूह कांप जाएगी। गुलाम ने जहांदाद सरकार ने खुर्शीद बीवी के गले में हाथ डालकर उन्हें मारने की कोशिश की, मगर गुलाम ने सामने आकर वो पुराना निकाहनामा दिखा दिया जिसने साहिब जान की औकात मिट्टी में मिला दी। हवेली के सहन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। जहांदाद सरकार के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो उन्होंने 22 साल से अपने अंदर दफन किया था। साहिब जान जो दीवार के साथ लगकर खड़ी थीं, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो कागज कोई आम दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उस हवेली की सारी जायदाद और इज्जत का फैसला था। गुलाम ने गरजते हुए लहजे में कहा, सरकार, आपने समझा था कि खुर्शीद बीवी सिर्फ एक कैदी हैं, मगर आप ये भूल गए कि ये इस हवेली की असली मालिक और आपकी मनकोहा बीवी हैं। हवेली की फसील पर भी एक अजीब सुन्नाटा छा गया था। बादशाह, जो अब तक वजीर बनने के नशे में था, उसने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप जहांदाद की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। जहांदाद सरकार की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया था। साहिब जान ने चिल्लाकर कहा कि ये गुलाम झूठ बोल रहा है, ये लड़का हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। मगर गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा जान, सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। प्रोमो में आपने देखा था कि साहिब जान के मुंह से सच निकल चुका है, और वो सच यही था कि उन्होंने 22 साल पहले खुर्शीद बीवी के हक पर डाका डाला था। सुंदरी जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने अपने बाप आशिक अली को याद किया, जिसने इसी सच के लिए अपनी जान दे दी थी। गुलाम ने सुंदरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। जहांदाद सरकार ने घबरा कर कहा, बता दो मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? गुलाम ने खुर्शीद बीवी की तरफ इशारा किया और कहा कि जिसे आपने 22 साल तक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधे रखा, इसी की गोद में आपकी अमानत पाली है। खुर्शीद बीवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सुंदरी को अपने गले से लगा लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हवेली के कमसन मुलाजिम भी रोने लगे। अब फैसला बादशाह को करना था। उसने अपनी वजारत की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मेरे बाप के गुनाहों के ऊपर खड़ा हो। साहिब जान ने बादशाह को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि अम्मा, आपकी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली है। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने अपनी बंदूक की नली अपने ही तालू पर रख ली। गुलाम ने झट से बंदूक छीन ली और कहा कि सरकार, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, अभी तो आपने अपने गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना है। रात के इस पहर में हवेली के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब से हवेली की मालकिन खुर्शीद बीवी हैं। साहिब जान को उनके पुराने जेवरात और रेशम के कपड़े उतारकर सादा कपड़े पहना दिए गए। उन्हें उसी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर किया गया जहां वो मजलूम लड़कियों पर जुल्म करती थीं। जहांदाद सरकार को हवेली के दरमियान में एक खंभे से बांध रखा गया ताकि हर आने वाला शख्स उनके मुंह पर थूक सके। सिंदरी ने जब देखा कि उसके दुश्मनों का ये हाल हुआ है, तो उसने गुलाम से कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहती है, मगर गुलाम ने कहा कि सिंदरी, इंसानियत की मदद करना मेरी फितरत में है, मगर जालिम को सजा देना कुदरत का कानून है। बादशाह ने हवेली से निकलते हुए सिंदरी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जहां कोई सरकार नहीं होगा। खुर्शीद बीवी ने अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि 22 साल बाद उनकी बेगुनाही साबित हो गई। इस किस्त का इख्तिताम ऐसा होगा कि हर देखने वाले की रूह कांप जाएगी। गुलाम ने जहांदाद सरकार ने खुर्शीद बीवी के गले में हाथ डालकर उन्हें मारने की कोशिश की, मगर गुलाम ने सामने आकर वो पुराना निकाहनामा दिखा दिया जिसने साहिब जान की औकात मिट्टी में मिला दी। हवेली के सहन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी।
जहांदाद सरकार के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो उन्होंने 22 साल से अपने अंदर दफन किया था। साहिब जान जो दीवार के साथ लगकर खड़ी थीं, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो कागज कोई आम दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उस हवेली की सारी जायदाद और इज्जत का फैसला था। गुलाम ने गरजते हुए लहजे में कहा, सरकार, आपने समझा था कि खुर्शीद बीवी सिर्फ एक कैदी हैं, मगर आप ये भूल गए कि ये इस हवेली की असली मालिक और आपकी मनकोहा बीवी हैं। हवेली की फसील पर भी एक अजीब सन्नाटा छा गया था। बादशाह जो अब तक वजीर बनने के नशे में था, उसने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप जहांदाद की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। जहांदाद सरकार की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया था। साहिब जान ने चिल्लाकर कहा कि ये गुलाम झूठ बोल रहा है, ये लड़का हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। मगर गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा जान, सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। प्रोमो में आपने देखा था कि साहिब जान के मुंह से सच निकल चुका है, और वो सच यही था कि उन्होंने 22 साल पहले खुर्शीद बीवी के हक पर डाका डाला था। सुंदरी जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने अपने बाप आशिक अली को याद किया, जिसने इसी सच के लिए अपनी जान दे दी थी। गुलाम ने सुंदरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। जहांदाद सरकार ने घबरा कर कहा, बता दो मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? गुलाम ने खुर्शीद बीवी की तरफ इशारा किया और कहा कि जिसे आपने 22 साल तक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधे रखा, इसी की गोद में आपकी अमानत पाली है। खुर्शीद बीवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सुंदरी को अपने गले से लगा लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हवेली के कमसन मुलाजिम भी रोने लगे। अब फैसला बादशाह को करना था। उसने अपनी वजारत की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मेरे बाप के गुनाहों के ऊपर खड़ा हो। साहिब जान ने बादशाह को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि अम्मा, आपकी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली है। जहांदाद सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने अपनी बंदूक की नली अपने ही तालू पर रख ली। गुलाम ने झट से बंदूक छीन ली और कहा कि सरकार, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, अभी तो आपने अपने गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना है। रात के इस पहर में हवेली के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब से हवेली की मालकिन खुर्शीद बीवी हैं। साहिब जान को उनके पुराने जेवरात और रेशम के कपड़े उतारकर सादा कपड़े पहना दिए गए। उन्हें उसी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर किया गया जहां वो मजलूम लड़कियों पर जुल्म करती थीं। जहांदाद सरकार को हवेली के दरमियान में एक खंभे से बांध रखा गया ताकि हर आने वाला शख्स उनके मुंह पर थूक सके। सिंदरी ने जब देखा कि उसके दुश्मनों का ये हाल हुआ है, तो उसने गुलाम से कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहती है। मगर गुलाम ने कहा कि सिंदरी, इंसानियत की मदद करना मेरी फितरत में है, मगर जालिम को सजा देना कुदरत का कानून है। बादशाह ने हवेली से निकलते हुए सिंदरी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जहां कोई सरकार नहीं होगा। खुर्शीद बीवी ने अपने हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि 22 साल बाद उनकी बेगुनाही साबित हो गई। इस किस्त का इख्तिताम ऐसा होगा कि हर देखने वाले की रूह कांप जाएगी। गुलाम ने जहांदाद सरकार ने खुर्शीद बीवी के गले में हाथ डालकर उन्हें मारने की कोशिश की, मगर गुलाम ने सामने आकर वो पुराना निकाहनामा दिखा दिया जिसने साहिब जान की औकात मिट्टी में मिला दी। हवेली के सहन में जैसे कयामत टूट पड़ी थी। जहांदाद सरकार के हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों में वो खौफ नजर आने लगा जो उन्होंने 22 साल से अपने अंदर दफन किया था। साहिब जान जो दीवार के साथ लगकर खड़ी थीं, उन्हें महसूस हुआ कि उनके पैरों तले से जमीन निकल गई है। वो कागज कोई आम दस्तावेज नहीं था, बल्कि वो उस हवेली की सारी जायदाद और इज्जत का फैसला था। गुलाम ने गरजते हुए लहजे में कहा, सरकार, आपने समझा था कि खुर्शीद बीवी सिर्फ एक कैदी हैं, मगर आप ये भूल गए कि ये इस हवेली की असली मालिक और आपकी मनकोहा बीवी हैं। हवेली की फसील पर भी एक अजीब सन्नाटा छा गया था। बादशाह जो अब तक वजीर बनने के नशे में था, उसने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बाप जहांदाद की तरफ देखा और पूछा कि क्या ये सच है। जहांदाद सरकार की खामोशी ने सब कुछ बयान कर दिया था।
साहिब जान ने चिल्लाकर कहा कि ये गुलाम झूठ बोल रहा है, ये लड़का हमारे खानदान को तबाह करना चाहता है। मगर गुलाम ने मुस्कुरा कर कहा कि अम्मा जान, सच तो अब सामने आकर ही रहेगा। प्रोमो में आपने देखा था कि साहिब जान के मुंह से सच निकल चुका है, और वो सच यही था कि उन्होंने 22 साल पहले खुर्शीद बीवी के हक पर डाका डाला था। सुंदरी जो एक कोने में खड़ी ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उसने अपने बाप आशिक अली को याद किया, जिसने इसी सच के लिए अपनी जान दे दी थी। गुलाम ने सुंदरी के सर पर हाथ रखा और कहा कि घबराना नहीं, अब तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। जहांदार सरकार ने घबरा कर कहा, बता दो मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? गुलाम ने खुर्शीद बीवी की तरफ इशारा किया और कहा कि जिसे आपने 22 साल तक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधे रखा, इसी की गोद में आपकी अमानत पाली है। खुर्शीद बीवी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सुंदरी को अपने गले से लगा लिया। ये मंजर इतना जज्बाती था कि हवेली के कमसन मुलाजिम भी रोने लगे। अब फैसला बादशाह को करना था। उसने अपनी वजारत की कुर्सी को लात मारी और कहा कि मुझे ऐसा इख्तिदार नहीं चाहिए जो मेरे बाप के गुनाहों के ऊपर खड़ा हो। साहिब जान ने बादशाह को रोकने की कोशिश की, मगर बादशाह ने उनका हाथ झटक दिया। उसने कहा कि अम्मा, आपकी बेहिसी ने मेरी पूरी जिंदगी निगल ली है। जहांदार सरकार ने जब देखा कि उनका बेटा भी उनके खिलाफ हो गया है, तो उन्होंने अपनी बंदूक की नली अपने ही तालू पर रख ली। गुलाम ने झट से बंदूक छीन ली और कहा कि सरकार, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, अभी तो आपने अपने गुनाहों का कफ़ारा इसी दुनिया में अदा करना है। रात के इस पहर में हवेली के हर दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। गुलाम ने ऐलान किया कि अब से हवेली की मालकिन खुर्शीद बीवी हैं। साहिब जान को उनके पुराने जेवरात और रेशम के कपड़े उतारकर सादा कपड़े पहना दिए गए। उन्हें उसी बावर्ची खाने में काम करने पर मजबूर किया गया जहां वो मजलूम लड़कियों पर जुल्म करती थीं। जहांदार सरकार को हवेली के दरमियान में एक खंभे से बांध रखा गया ताकि हर आने वाला शख्स उनके मुंह पर थूक सके। सिंदरी ने जब देखा कि उसके दुश्मनों का ये हाल हुआ है, तो उसने गुलाम से कहा कि मैं इन्हें माफ करना चाहती है। मगर गुलाम ने कहा कि सिंदरी, इंसानियत की मदद करना मेरी फितरत में है, मगर जालिम को सजा देना कुदरत का कानून है। बादशाह ने हवेली से निकलते हुए सिंदरी से माफी मांगी और कहा कि मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा जहां कोई सरकार नहीं होगा। खुर्शीद बीवी ने अपने